class. Today we will do chapter 9, the flowering of religious cultures. So in this chapter we are going to learn about development of languages, music, dance, paintings, and we will also study about Bengal. So let's start with the chapter. It is on page number 84. A substantial development during the medieval period was the emergence of the distinct regional cultures and traditions. Each region witnessed the growth of unique and specific language, food, clothes, art, poetry, म्यूज़िक एंड डांस. तो देखो मिडिवल पीरियड में डेवलपमेंट हो रहा था आर्ट एंड कल्चर में. तो न्यू कल्चर आ रहा था, आर्ट, पोएट्री, इवन क्लोथ्स में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ. इसके अलावा म्यूज़िक एंड डांस. इसमें से हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस. अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस केम इनटू यूज ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इन इंडिया. With the Delhi Sultanate, this period not only witnessed the use of Arabic and Persian, but the birth of a new language called Urdu. तो अगर हम मिडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत की बात करें तो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज तो यूज़ हो ही रही थी. इसके अलावा एक नई भाषा का जन्म हुआ और वो भाषा थी उर्दू. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरेबिक लैंग्वेज के बारे में. Arabic was the language that was prevalent in Central and West Asia. It was widely used by the rulers of the Delhi Sultanate. तो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे वो अरेबिक लैंग्वेज का काफ़ी यूज़ किया करते थे. The use of Arabic was restricted to religious and philosophical literature. The Fatwa-e-Alamgiri written during the Mughal period was a law treatise. Now Persian. Persian originated in Central Asia during the 10th century. तो 10th century में शुरुआत होती है सेंट्रल एशिया में पर्शियन लैंग्वेज की. Persian was introduced to the Indian subcontinent with the arrival of the Turks. The Turks made Persian the administrative language of the country. अगर हम अपने भारत की बात करें, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, तो यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज लाने वाले तुर्क्स थे और वो जो तुर्क्स थे वो इंडिया में सारा काम, अपना एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम पर्शियन लैंग्वेज में किया करते थे. Many court records, chronicles, biographies and autobiographies were written in Persian. The important historians of this period were Abul Fazl, Barani, Minhaj-e-Siraj, Afif, and Isami. फैज़ी एंड उतबी वर वेल नोन पर्शियन पोइट्स. अंडरलाइन कर लीजिएगा कि फैज़ी एंड उतबी दो पर्शियन पोइट्स थे. इट इज़ बिलीव्ड दैट द यूज़ ऑफ पर्शियन लैंग्वेज ऑल्सो डेवलप्ड एंड स्ट्रेंथन्ड कल्चरल टाइज विद सेंट्रल एशिया एंड ईरान. और ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशिया और ईरान से पर्शियन लैंग्वेज ने बड़ी हमें मदद की उन सेंट्रल एशिया और ईरान से जुड़ने में. नाउ आमिर खुसराओ. Amir Khusrau has been known to be the most renowned Persian scholar of the medieval period. He was a leading poet during the Sultanate period. तो poet थे आमिर खुसराऊ. Amir Khusrau is also credited with introducing the ghazal form of composing poetry. तो माना जाता है कि ये गज़ल फॉर्म में लाए थे पोइट्री को, यानी जो पहले कविताएं बोली जाती थी, पोइट्री की जाती थी, उसको गज़ल फॉर्म में लाने वाले आमिर खुसराऊ थे. Important works of Amir Khusrau include the Khalik-Bari, a dictionary composed in verse, and the Tughlaq-Nama, a text on Ghiyasuddin Tughlaq. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इनके वर्क्स थे. Now, Amir Khusrau is known to introduce the Sabak-e-Hindi or style of India type of writing. He also developed Hindvi, which literally means of Hind. तो इन्होंने हिंदवी भी डेवलप की थी जिसका मतलब होता है हिंद का. आमिर खुसराऊ मोस्टली रोट इन पर्शियन एंड अरेबिक. हाउएवर हिज वर्क्स रिफ्लेक्ट इंडियन इन्फ्लुएंस एज वेल. तो आमिर खुसराऊ ज़्यादातर पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में लिखते थे, पर इंडियन कल्चर की भी यहाँ पर झलक देखने को इनके कामों में मिलती थी.
Amir Khusrau's works started a cultural exchange between Sanskrit and Persian. Many Sanskrit works were translated into Persian, such as the great epics of Ramayana and Mahabharata. तो पर्शियन में ट्रांसलेट करने का काम भी इन्होंने किया रामायण और महाभारत को. Now Sanskrit. Sanskrit has been a prominent language in India since the ancient period. It was also the court language in North India and was also used for religious purposes. तो एशियंट हिस्ट्री के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरीके से संस्कृत का यूज़ काफ़ी समय से होता आया है. काफ़ी पुराने समय से हम लोग संस्कृत का यूज़ भारत देश में कर रहे हैं. With the establishment of the Delhi Sultanate, many literary works were composed in Sanskrit. The Bhakti saints of the medieval period such as Ramanuj and Madhavacharya wrote their works in Sanskrit. तो जब हमने भक्ति मूवमेंट पढ़ा था तो हमने इनके बारे में पढ़ा था, रामानुज और माधवाचार्य के बारे में. तो इन्होंने भी जो लिखा, जो अपने लिटरेरी वर्क्स थे इनके, उन्होंने इन लिटरेरी वर्क्स को संस्कृत में लिखा था. Sanskrit received patronage from both Hindus and as well as Hindu rulers. तो हिंदू और मुस्लिम रूलर्स आए, पर दोनों ने कहीं ना कहीं संस्कृत को जगह दी, पहचान दिलाकर रखी. Important Sanskrit literature of this period includes Kalhana's Raj Tarangini. It gives a detail of the family history of the kings of Kashmir. Okay. धूप की वजह से वर्ड्स को पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी. अब लोकेशन चेंज. सो लेट्स स्टार्ट. कथा सरित सागर रिटन बाय सोमदेव इंक्लूडेड मोर देन 22,000 संस्कृत श्लोक्स. तो अगर हम बात करें कथा सरित सागर की, तो ये सोमदेव ने लिखी थी और इसमें 22,000 से ज़्यादा संस्कृत के श्लोक्स लिखे हुए हैं. The Persian story of Yusuf and Zuleika, written by the poet Jami, was translated into Sanskrit. Now Hindi, हमारी भाषा. Hindi originated from different dialects such as Brij Bhasha, Avdhi, Maithili, Bhojpuri and Khari Boli. During the medieval period, two forms of Hindi were used, ब्रिज भाषा और अवधी. तो अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करें तो हिंदी की दो फॉर्म्स यूज़ होती थी, वो थी आपकी ब्रिज भाषा और अवधी. द लिटरेचर मोस्टली प्रेज्ड राजपूत रूलर्स. द पृथ्वीराज रासो बाय चंद्रबरदई इज वन सच वर्क. इट डिस्क्राइब्स द हिंदू रूलर पृथ्वीराज चौहान. तो अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो की, जो कि चंद्रबरदई ने लिखी, ये थी कथा पृथ्वीराज चौहान के बारे में. During Akbar's reign, Abdur Rahim wrote poetry in the form of couplets. These couplets came to be known as दोहास. तो अगर हम बात करें अब्दुर रहीम की, तो इन्होंने क्या लिखे? दोहे. अपने कबीर दास के भी दोहे पढ़े होंगे. Tulsidas was a bhakti poet who lived during Akbar's reign. He translated the Ramayana into Hindi. तो अगर हम तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने रामायण को हिंदी में ट्रांसलेट किया था. इट वॉज कॉल्ड रामचरितमानस. मीराबाई, हु वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कंपोज्ड हर भजन्स इन हिंदी. तो मीराबाई, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी, इन्होंने भी अपने जितने भी भजन थे वो हिंदी में लिखे थे. Another Bhakti saint, सूरदास wrote poems in praise of Lord Krishna in ब्रिज भाषा. इसके अलावा अगर हम बात करें सूरदास की, तो सूरदास ने पोएम्स लिखी लॉर्ड कृष्णा के बारे में, जो कि ब्रिज भाषा में थी. द पद्मावत रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी इन अवधी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ रानी पद्मावती ऑफ चित्तौड़. नाउ उर्दू. उर्दू मीन्स कैंप in the Turkish language. Urdu originated from the interactions between the armies of Mahmud of Ghazni and the local population. It is a mixture of Persian and Hindi. तो उर्दू किसका मिक्सचर है? उर्दू मिक्सचर है हिंदी और पर्शियन भाषा का. It gradually became a common language in North India during the medieval period. और बहुत ही जल्द ये एक कॉमन भाषा बन गई नॉर्थ इंडिया की.
मिर्ज़ा गालिब रोड ब्यूटीफुल पोइट्री इन उर्दू। तो मिर्ज़ा गालिब ने बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी उर्दू में। इन द डेक्कन रीजन अंडर द बहामनी रूलर्स a different style of Urdu developed that came to be known as Dakkini. Dakkini was a blend of Persian, Telugu and Tamil. एक न्यू स्टाइल डेवलप हुई उर्दू की जिसको बोला गया दक्खनी, और दक्खनी ब्लेंड था यानी मिक्सचर था पर्शियन, तेलुगु और तमिल का। Now regional languages. A number of regional languages such as Gujarati, Marathi, Bengali, Kannada and Assamese developed during the medieval period in India. तो medieval period में जहाँ उर्दू, हिंदी ये सारी लैंग्वेजेस चल रही थी, वहाँ पर और भी रीजनल लैंग्वेजेस आ रही थी, जैसे गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, बंगाल की बंगाली और कन्नड़ असमीज। Most of these languages were used for administrative purposes in regional kingdoms prior to the advent of the Turks. तो तुर्क के आने से पहले जो इनका काम होता था, अगर असम में होगा तो असमीज़ में होगा काम, तो इस टाइप से चीज़ें वहाँ पर चलती आ रही थी, यानी कि रीजनल जो काम होता था वो रीजनल लैंग्वेज में ही होता था। In some regional kingdoms, these local languages continue to be used even during the Delhi Sultanate and the Mughal period. Even कुछ regional kingdoms में तो वो लोग अपनी local language को ही यूज़ करते थे काम करने के लिए, चाहे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने रूल किया हो या फिर मुग़ल पीरियड में मुगल्स ने राज किया हो। The Bhakti saints were also instrumental in the use and spread of regional languages. As they wanted to cater to a wider audience, the Bhakti saints made their compositions in regional languages. तो देखो पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से भक्ति मूवमेंट के संत और जो आपके सूफी मूवमेंट के संत थे वो जिस एरिया में जाते थे वहीं की भाषा में अपने धर्म का प्रचार करते थे। तो इन सेंट्स की भी जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो रीजनल लैंग्वेज को यूज़ किया करते थे। The Bhagavad Gita, Purans and the epics Ramayana and Mahabharata were translated for common people. Now Tamil, it is one of the oldest languages of India. काफ़ी पुरानी भाषा है ये इंडिया की। Unlike many Indian languages, ancient Tamil shows no traces of Sanskrit. Tamil was widely used by Alvars and Nayanars who used Tamils in their compositions. तो Alvars और Nayanars के बारे में भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये लोग तमिल लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। Poets like Kamban and Otakuttar received royal patronage from the Chols. Kamban's most famous work includes the translation of Ramayana in Tamil. तो अरे रामायण को तो बहुत भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, देखो यहाँ पर रामायण को तमिल भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया। It is believed that Telugu acquired its present form between the 10th and 14th century. तो ऐसा माना जाता है कि जैसी आज तेलुगु है वो है जो चेंजेस आए 10th से लेके 14th सेंचुरी के बीच में तेलुगु भाषा में। श्रीवालसा बाय श्रीनाथ was a beautiful piece of poetry that was composed during this period. During the rule of Vijayanagar Empire, Telugu was a prominent language. तो विजयनगर एम्पायर के समय में जो तेलुगु लैंग्वेज थी उसका एक स्पेशल स्टेटस था, उसको विजयनगर एम्पायर में काफ़ी पहचान मिली। In fact, Krishnadev Rai, a king from the Vijayanagar Empire, wrote the poem Amukta Malyad in Telugu. तो इतनी पहचान मिली कि खुद कृष्णदेव राय ने एक कविता लिखी, और किस में लिखी, किस भाषा में लिखी? तेलुगु भाषा में। In the 12th century, the Mahabharata was translated by Tikana and Nayana. Now Marathi. Marathi developed as a regional language in the Deccan during the rule of Bahmani sultans as their court language. The Bhakti saints like Eknath and Tukaram also contributed to the spread of Marathi through their devotional songs. तो मराठी भाषा को प्रमोट हमारे भक्ति सेंट्स ने भी किया। एकनाथ और तुकाराम जैसे संत थे जिन्होंने अपने कीर्तन, भजन, गानों में मराठी भाषा का इस्तेमाल किया। In the 17th century, secular poetry emerged in the form of pavadas, ballads. These ballads described the military skills and bravery of the Marathas. इसके अलावा pavadas भी गाए जाते थे, ballads गाए जाते थे।
इसमें क्या होता था कि जो मराठास थे उनकी वीरता की गाथा होती थी। द भगवत गीता वॉज ट्रांसलेटेड इनटू मराठी बाय संत जननेश्वर। नाउ म्यूज़िक, तो आप सब जानते हैं म्यूज़िक भी एक कला है और इसके अंदर भी समय के साथ काफ़ी सारे चेंजेस आए। म्यूज़िक वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मिडिवल कल्चर। म्यूज़िक वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ टू कल्चर्स। बिफोर द कमिंग ऑफ द तुर्क्स, फोक म्यूज़िक फ्लरिश्ड विद क्लासिकल म्यूज़िक। तो तुर्क के आने से पहले अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फोक म्यूज़िक होता था और क्लासिकल म्यूज़िक के संग उसको कंपोज किया जाता था। The Turks brought their own music and instruments like the सारंगी एंड रबाब। पर जैसे तुर्क्स आए अपने संग आर्ट का कल्चर अलग लेकर आए, इसी तरीके से म्यूज़िक में भी वो चेंजेस लेकर आए। वो अपने संग कुछ अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स लाए जैसे कि सारंगी और रबाब। द दिल्ली सल्तनत रूल सॉ द फ्यूजन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक विद पर्शियन एंड टर्किश म्यूज़िक। इसके अलावा जब दिल्ली सल्तनत थी तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक को मिक्स किया गया पर्शियन और टर्किश म्यूज़िक से। द न्यू स्टाइल ऑफ म्यूज़िक दैट ओरिजिनेटेड वाज नोन एज कव्वाली एंड द ख्याल। और जो नया फॉर्म निकल कर आया म्यूज़िक का वो था कव्वाली। इवन टुडे कव्वालीज आर संग एट दरगाह। इवन आज भी दरगाह पे कव्वाली गाई जाती हैं। द मुगल एम्परर अकबर वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ म्यूज़िक। The classical singer Tansen was a part of the Navratans or 9 gems of Akbar's court। तो अकबर को बड़ा लगाव था म्यूज़िक से। इतना लगाव था कि जो तानसेन है जो काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन माने जाते हैं वो उन्हीं के कोर्ट का, उन्हीं के दरबार का हिस्सा थे और उनके 9 रत्नों में से एक थे। He was known for creating rags। Raja Man Singh of Gwalior encouraged the Dhrupad style of singing। The Tarana and Dadra form of music originated during the reign of Muhammad Shah। The Thumri style of music was influenced by folk music। The Hindustani and Carnatic styles of music originated in the north and south regions of India respectively। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक काफ़ी फ्लरिश हुआ नॉर्थ में इंडिया के, और जो कार्नेटिक स्टाइल था जो वो फेस लगा के और बहुत फेस को डेकोरेट करके और जो आईब्रोज और आईज़ के मूवमेंट से जो डांस करते हैं वो जो कार्नेटिक स्टाइल का डांस होता है वो हुआ साउथ में फेमस। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक हुआ नॉर्थ में और कार्नेटिक स्टाइल हुआ साउथ में। द कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक दैट डेवलप्ड इन साउथ इंडिया डिड नॉट हैव पर्शियन और अरेबिक इन्फ्लुएंसेस। तो जो कार्नेटिक स्टाइल था उसमें पर्शियन और अरेबिक स्टाइल देखने को नहीं मिलता। द विजयनगर एम्पायर पैट्रोनाइज्ड द कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक। चतुर्दंडी प्रक्षिका was an elaborate treatise on the Carnatic system of music. It was written by Ventaka Makin। Now dance। So dance is an important part of Indian culture। ये देखो हम सब जानते हैं, चाहे हमारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हो, चाहे हमारे घर में शादी हो, चाहे हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो, डांस तो इंडियन कल्चर का हिस्सा हमेशा से रहा है। लोगों ने अपनी खुशी, अपना सेलिब्रेशन डांस के थ्रू ही दिखाया है। Initially, dance was used to tell stories which were based on mythology. Besides storytelling, dance was also an expression of devotion to one's God। अब पहले जो डांस होता था वो होता था कोई कहानी बताने के लिए, खास करके कोई पौराणिक कथा बताने के लिए। यस, आप सोचेंगे ऐसा कैसे, तो आप गूगल या यूट्यूब पर जाइएगा और सर्च करिएगा। डांस करते